ମୋଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେହି ସମୟରୁ ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଣାଆନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ ମିଶରରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। আর ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାହାରିଥିଲା ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ମିଶରରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି କାଲେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାଲେବଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା। କାଲେବ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତ 85 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାକୁ ତାର ବଳ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ ତାର ବଳ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କାଲେବକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯେପରି ବଳବାନ ଥିଲି ସେପରି ଆଜି ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାହାରେ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୋହର ଯେପରି ବଳ ଥିଲା ସେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ବଳ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ମିଶରରୁ କିଣାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ କେବଳ ଯାତ୍ରା କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। ନଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳକୁ ସେ ମାଗିଲେ। କାଲେବ ଏକ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦାବି କରେ ଆଉ ତାହା ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ 45 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରେ। 45 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ 45 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ କାଲେବ ଯେଉଁ ଦେଶ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। କି ପ୍ରକାର ମିଳିଲା? ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଇପାରେ ଯେ କହିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ମୋତେ ବଡ଼ କୋଠା ଦିଅ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଦେଲେ ତାହା ନୁହଁ। ଏକ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ମାଗିଲେ ଆଉ ସେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ତହିଁର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଲେ। ସେଟା ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷରେ? ଏ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମୟର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛି, 85 ବର୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ବଳବାନ ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ପରି ତାଙ୍କର ବଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା।
आ शत्रु विरुद्ध युद्ध कर से जय लाभ करिवार जन व्यक्ति थिले। परमेश्वर ए वाक्य द्वारा आमान को एटा शिक्षा दियंती, एटा चेतावनी दियंती जे आमानकर बयस जेते होना कहीं किसी जायस ना। आम जदि परमेश्वर उपस्थिति अच्छु, प्रभु आमानकर सहित अच्छा, आमान को गोटे प्रतिज्ञा दे अच्छा, कालेब को जे प्रकार देइथिले आउ सही प्रतिज्ञा तो देश को पहुँचवा निमंते आमान को हुए तो दीर्घ समय अपेक्षा करने को पड़े। कालेब को जे प्रकार 45 वर्ष अपेक्षा करने को पड़ेला, किंतु परमेश्वर निश्चित आमान को देवे। किंतु से आमानकर प्रतिज्ञात देश आम प्राप्त होगा पूर्वर आमको किछि करने को पड़ो। आउ ताहा कौन? ताहा होछि एक युद्ध, एक युद्ध। आ से दिन कालेब युद्ध कले, अनाक्य मान परास्त कले, किंतु आज आम क्या सहित युद्ध करवा? मोर प्रिय माने, आमे जो पृथ्वी रे बास करूछु, ए पृथ्वी आमान को सर्वदा आकर्षण करुछि तार असुचिता आड़कू, तार पाप आड़कू। माध्याकर्षण शक्ति जे प्रकार आउ तल को कौन कर आकर्षण करे, सही परी ए पृथ्वीर प्रत्येक पाप आमान को कौन करुछि? सर्वदा आकर्षण करुछि। तथापि आमे से समस्त पाप को त्याग करी परमेश्वर उपस्थिति रे रही आमे जदि आग को बढ़िबा, प्रत्येक पाप को तुच्छीकृत करिबा, छाड़िबा, मन को परिवर्तन करिबा, काले परमेश्वर निकट समर्पित थिले आमे समर्पित हेबा परमेश्वर निकटरे, ताहेले परमेश्वर आमको कौन करिवे? प्रतिज्ञात देश को पहुँचाइबा निमंते आमको सक्षम करिवे। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञात देश को पहुँचवा निमंते दुईटी विषय आवश्यक रही। गोटे प्रथम विषय होछि परमेश्वर बा परमेश्वर उपस्थिति बा परमेश्वर साहाय्य। द्वितीय विषय होछि आम मानकर मनोबल, आम मानकर समर्पणर जीवन। आम यदि परमेश्वर ठारे समर्पित होचु, मु काली ना परदिन जनक सहित कथबार्ता करूली जे तुम प्रभुकर लोक है कि प्रकार एते मिथ्या कथा कहि पार? कि प्रकार ता हे पारुछि? पर प्रिय माने आमे तो हुए तो साधारण भाव में चिंता करी थाउ एटा साधारण कथा बोली। साधारण कथा नुह, एटा साधारण कथा नुह, एटा बहुत बड़ गोटे जगतर बा पापर आकर्षण शक्ति अटे। से वाक्य लिखा जाए ये सहजरे बेष्टित पाप सहजरे आमान को बेष्टन करी निए, बांधी निए, सहजरे अति सहजरे क्या मानसी ठगी देसु आम ठगी देसु आ बोलु पछा प्रभु ने क्षमा मागी देमी ना। सहजरे बेष्टन करी पाप काना करुचे? प्रभु लोक मार्गे जगत के पाप आड़के आकर्षित करुचे, बांधुचे। प्रथम जोहन काबेल लिखाई जेन माने जगतर नुहंती, जेन माने जगतर उत्पन्न नुहंती, जो माने परमेश्वर ठारू जात से माने पाप करी पारिबे नहीं, अर्थात पाप को घृणा करिवे। से घृणा करबे। घृणा करबाटा आ करबाटा भितर बहुत पार्थक्य अछि। जड़े किसी कहू कहू कहीदेला सेटा बड़ कथा नहीं से, किंतु से तार इच्छा शक्ति अनुसार जदि कला कहीदेला सेटा बहुत बड़ कथा। गोटे कल्पना करवा, इमाजिन करवा भितर ने मुई एंता कले एंता हेबा, मुई सेंता कले सेंता हेबा, किहे जानी नहीं पार। आ तापरे जेते बोले सेटा कहूचे सेटा गोटे काण बोली के लिखा है मिथ्या विषय लिखा जाए। वाक्य रे कौन बोली लिखा जाए? मिथ्याचारी आउ
मिथ्या आकलनकारी ए प्रकार गोटे सुंदर शब्द लिखा जाए मो एक्यूरेट शब्द को कही पारुना है। मिथ्या कहवा व्यक्ति और मिथ्या को गठन करिवार व्यक्ति केवल मिथ्या ताहा नुह गोटे उदाहरण देली अनेक विषय रही जहाँकि आम जगतर पाप आम को आकर्षण करुसी आम जापारुनु आम तहिर पृथक होगा निमंते चेष्टा करूनु। एटा गोटे युद्ध मोर प्रिय माने कालेब युद्ध करथिले अनाक्य माने जो देश रे रहिथिले सेई देश रे अनाक्य मानक विरुद्ध रे उठी से युद्ध कले या युद्ध रे सेमान को परास्त करी से जय लाभ कले। आमे जो जगत रे बंचुछु जो पापमय जगत रे अछु आमक चतुर्दिगरे सही प्रकार पाप आमको कौन करुच्ची आकर्षण करुच्ची बास करुच्ची प्रत्येक विषय रे पाप देखा जाए प्रत्येक जगार पाप देखा जाए कौ जगार पाप ना कहतु कौ जगार ना जो परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वी सृष्टि करे से ही परमेश्वर सृष्टि को शैतान कि प्रकार तार हस्तगत करिअछि जेतेबेले आमे यात्रा करिबा से समय टिक चिंता करिबा जेतेबेले आमे रास्ता रे जाउछु से समय चिंता करिबा अनेक सब से विषय चिंता करू देखो गोटे चर्च घर होइतिले भांगी दउछथि लोक माने किंतु गोटे गछ तळे गोटे लाल कपड़ा ये करी करी हुडौछथि गोटे मंदिर निर्माण करि दउछथि ना सर सेठी किछि प्रॉब्लम ना काहे कि कारण ए जगतर अधिपति से मानकर सपक्ष अटे तार कांडामा अटे सेटा तार नेतृत्व प्रत्येक परिचालित होती एभॉइड करिवार शिखी ना पाप को एभॉइड करिवा अर्थात गोटे युद्ध मु जण सहित कथा होतिली गोटे पवित्र व्यक्ति आ गोटे अशुद्धाचारी व्यक्ति कहीं पवित्र नुहति किंतु परमेश्वर जीशु रक्त द्वारा धौत होतार गोटे व्यक्ति आउ उद्धार पाई नथिबार व्यक्ति भीतर पार्थक्य कौन समान विषय खाइब समान विषय बास करिब कथबार्ता समान हो पारे प्रभु को जान नथिला लोक माने मते बहुत सुंदर व्यवहार करती पारे बहुत सुंदर व्यवहार होता पारे पार्थक्य कौन जन को पाप कौन कर गड़े रखी बांधि रखी आ जड़े पापर मुक्त हो जड़े पापर मुक्ति पाई जगार 11 पदरे कालेब कहते मुझे दिन जे प्रकार गोटे योद्धा थी आज सही परि अछि बयसर किछि आउ प्रतिबाधा नहीं है जगत बयस अटके पारु ना युद्ध करने निमंते मोर प्रिय माने जदि आम शरीर बल ह्रास पाई आत्मार बल केबे ह्रास पाए ना आत्मार बल केबे ह्रास पाए ना आम आत्मिक मन हेबा आम पवित्र आत्मिक साहाय्य सर्वदा लोड़िबा पाप विरुद्ध आम युद्ध करवा आउ कौन करवा आउ जो जगार आउ अंधकार शक्तिर कार्य होची से जगार पवित्र आत्माकर कार्य को आम देखा एटा परमेश्वर इच्छा एटा कालेब करथिले एटा कालेब करबा निमंते आमान को प्रेरणा दियंते आमने प्रथमे आमने समर्पित हेबा जे प्रकार गोटे योद्धा समर्पित हुए कौन कौन समर्पण करे सबु किछि समर्पण करे सबु किछि परिवार छाड़ी दिए आउ चिंता छाड़ी दिए सब विषय छाड़ीदेव गोटे विषय तो गोटे लक्ष्य तार शत्रु को परास्त कर अजय लाभ कर एटा योद्धार लक्ष्य कालेबर लक्ष्य थिला था आज आम मानकर लक्ष्य मध्य से ही हेबा आवश्यक प्रतिज्ञात देश को पहुँचवा निमंते आम को एक योद्धार आवश्यक रही आम एक योद्धा न्याय जीवन रे आ जगत रे जीवन यापन करिवार आवश्यक रही पाप विरुद्ध रे सर्वदा युद्ध करी आम जय लाभ करिवार आवश्यक रही आज जदि किसी पाप को आम छाड़ी पारुनु
ताहले तार विरुद्ध युद्ध करू कहू प्रभु परमेश्वर मते साहाय्य कर मते साहाय्य कर ए पाप को मु छाड़ी पारुना ए पाप रे मते मुक्त हेबानी मते दया कर परमेश्वर आम को दया करेंगे निश्चय साहाय्य करेंगे ताहले आम आग को जीवा परमेश्वर को जदि आम सांगरे नेबा ना मोर प्रिय माने आम कौन सी ठारे विजय पाई परिबा ना कौन सी जगारी आमको विजय मिलिबा ना आम हारी जीवा परमेश्वर एक प्रतिज्ञात देश देले आउ कालेब से कौन कले प्रतिज्ञात देश को पहुँचेबा निमंते युद्ध करी आग को बढ़िले आउ सही जगार पहुँचे पर्वतांचल को एक पार्वतीय अंचल को काले मागिले परमेश्वर आम ए जगह केते जन अच्छु जैसे स्वर्ग सियोन पर्वत को जीवा निमंते आम परमेश्वर का निकट नवेदन करुछु केते जन अच्छु कौन आम से प्रकार प्रार्थना करछु परमेश्वर किछि मिलू न मिलू किछि आमान को जीवन रे आउ सुख मिलू न मिलू आमान को से स्वर्ग सिंहन मिलू केते लोक आम प्रार्थना करुछु सेथि पई जने प्रभु दास जे कि राजीव दानियल से सब बेले कहंती समस्ते प्रभुंकर लोक नुहंती आउ निश्चय केवल नाम रे प्रभुंकर अछंती किंतु केते लोक वास्तव रे प्रभुंकर लोक अछंती प्रथम जोहन अनुसार जो माने परमेश्वर ठारू जात होती केवल परमेश्वर ठारे समर्पित हेबे केवल परमेश्वर इच्छा अनुसार कार्य करेंगे आउ परमेश्वर जे प्रकार पाप को घृणा करते से माने मध्य पाप को घृणा करी आग को बढ़े आउ एक विषय जीवन काटी स्वर्ग सियोनर एक यात्री होई से सियोनर अधिकारी हो पारे आउ जदि जड़े पापात्मार संतान अटे ताको निश्चय पापात्मा ही ताको कब्जारे रखिब से मुकुली पारिब ना एथिपाई परमेश्वर साहाय्य आम को आवश्यक जदि आम कौन सी जगह आज झुंटी पड़ुछु फेल हो जाइछु अटकी जाइछु पाप को जयलाभ करि पारुनु छाड़ी पारुनु ताहेले परमेश्वर आसी मध्य चाहती आज मध्य से साहाय्यर हस्त बढ़ाती साहाय्य करवाते से ठिया होती आम प्रार्थना करवा कहवा प्रभु काले भी न्याय मु तुम ठारे समर्पित होछि मते दया कर मोर किछि शक्ति ना मोर किछि सामर्थ्य ना मु ए जगह झुंटी पड़ुअछि ए जगह पापरे मु विजय लाभ करि पारु नाय मते तुमे साहाय्य कर आउ मते आउ से प्रतिज्ञात देश बा स्वर्ग सियोन को जीवानी मते मते अनुग्रह कर मु ताहा पाइबानी मते चाहे प्रभु 45 वर्ष पर्यंत से अपेक्षा करि अछंती मोर प्रिय माने आमान को मध्य से ही प्रकार प्रार्थना करने को पड़ो आम को युद्ध करने को पड़ो आमान को लक्ष्य स्थल को पहुँचवा निमंते आमान को बल प्रयोग करने को पड़ो साहसिक होगा पड़ो बलवान होगा पड़ो आउ अनेक पाप विरुद्ध युद्ध कर जयलाभ कर से ही अंचल को प्रवेश करने को पड़ो एटा कालेब द्वारा परमेश्वर आमान को चेतावनी दियंती सर्वदा आम परमेश्वर उपस्थिति रहू तांकठारी समर्पित जीवन काटू आ परमेश्वर आम को कड़ करेंगे प्रत्येक विषय विजय जीवन काटी बांधते साहाय्य करेंगे प्रभु वाक्य द्वारा समस्त